नमस्ते, मैं हूँ आमना अंसारी और आपका स्वागत है इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में। Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week. This week, we are going to discuss something very, very important. A big, historic, bold move was made in the Parliament, Indian Parliament last week, where the Union Cabinet accepted a bill that raised the marriage level of Indian women from 18 to 21, right? And we would have expected that in a progressive, diverse, liberal society like India, which is pro women, and we have so many of these feminist groups, everybody would be on board. But a lot of people in the opposition are not on board. So to discuss this issue, we have Mahua Sen with us. Mahua Sen is a visual artist. She's a renowned singer. She's a writer. We also have Swati Goel Sharma, who is personally Amna and my favorite journalist, and that of many other people. Currently works for Swaraj Mag and also has worked for previous other establishments. Welcome, Mahua, and welcome, Swati. Thank you Hi. so much for such a kind introduction. Thank you so much, Amana and Khalid. All right. So, welcome Swati, welcome Mahua. So, as we can see, right, I mean, this move was made and we had very strong arguments by the government that, this would put the guys and the girls on equal footing. This is enshrined in our constitution about equality. And this overrides all the personal religious acts, whether that's the Shariat Act, whether that's the Hindu Personal Act, whether that's the Parsi Act, whether that's the Christian Act. So it is for every girl, regardless of, the caste they come from, the community they come from, the religion they come from, right? But we have opposition primarily by regressive Muslims and by Hindu communists, and they make this alliance, which is sold to us as the liberal one, which surely they're not liberal, neither are they pro-women, and they're definitely not feminist. We a while back spoke to one of India's doctors. She's a gynecologist, and we spoke to her about the issue of teen pregnancies, of what happens. So let's listen in what she said. Dr. Mehzad Bilal, thanks a lot for taking out time from your hectic schedule and helping us discuss this very important question. That's being debated right now in the Indian Parliament. Dr. Mehzad, I mean, from our initial research, from whatever we've read from top medical bodies like the World Health Organization, the Indian Medical Association, and Lancet Journal, and any top medical journal in the world speaks about this menace of teenage pregnancies, especially in lower income countries and developing countries like India. And what we understand is that, preterm deliveries and, stillbirths, neonatal deaths, 50% chances of more deaths for, teenagers than adult mothers, all this being there. So what can you tell us from your lived experience and your day-to-day life, that how big is this problem, and if you could just share your experience with us. Recently, a case हुआ है. We were just sitting in our ER, and a hardly 15-year-old girl, which हमें लग रहा था शायद 18 होगी, but when we came to know she's just 15 and she was in labor. Quite shockingly, she was bleeding profusely. बहुत ही ऐसा scenario था. I would not be able to discuss that. But then, arranging blood for that and fighting for her life, it was a massive thing. And then we had to take legal help also because, we couldn't handle that. She was a minor. Oh my God. We had to arrange so many blood units, the whole hospital we got in hustle and bustle, 15-year-old, and, she's delivering, and then so many complications. The child and the mother both were saved. But we would not like anything like that, to see in future. हम ऐसे नहीं देखना चाहते हैं. Because a minor जिसको अभी भी नहीं पता कि उसकी body के साथ, post pregnancy क्या changes आएंगी, अभी क्या उसको face करना है in terms of social, a lot of responsibilities come when you become a parent. She's herself 15 now. She has to, nurture a baby and a family, and then I was just thinking what all changes a girl has to face after marriage and all. So definitely वो सब चीजों में तो बहुत development we are really hoping कि हो. And to be very honest, अभी 2018 and 21 का survey आता है, कुछ national family health survey.
जहाँ पे अभी भी देखा गया है 23% केसेस में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं इंडिया में. So, it's an alarm. I think that would be one of the reasons the government has taken this step. 21, making it to 21. Thanks, Doctor. Doctor, last question. We won't hold you for too long. Mentally भी आपने क्या पाया है ऐसे ऐसे जो early pregnancies होते हैं mentally भी वो devastating होते हैं और physically तो body पे effect पड़ता है. Definitely, Khalid. I have seen girls coming to me in OPDs. Talking to them. They were discussing something else. They have this major backaches and all. But ultimately, the root cause, domestic violence. Then the root cause was an early marriage. This is all interlinked. And then post pregnancy, they are not able to accept, or they are not able to, they're not able to build up that bond with the baby. And then they have those postpartum blues. सुना होगा आपने, psychosis रहता है. कुछ women, they dislike their babies. They don't like seeing them. They don't like feeding them. They feel like it's a burden. क्योंकि वो खुद भी वैसे ही they are अभी उनका according to me it is their childhood, like who's just a 15-year-old 16-year-old, and then she has a baby to see, to look upon, to look after. So बहुत मुश्किल होता है इन लोगों को ये stress handle करना. And then the mental issues. I have seen so many cases recently coming to me, they have these physical issues as well, basically a mental cause, but then, it's somatic. Yeah. Chronic pain hai, then I asked, do you like being with your baby? Have you built up that relationship with your baby? She says, no, I don't like him. I don't feel like him. So, it's all interlinked. It's all interlinked. Agar uski shaadi right time pe hui hoti, maybe she would have got that sense, okay, now I'm educated. Now this is the second step. Now I have to. But wo jo steps usne skip kiye hain pehle hi. She has not had that good education, not a good, family setup. Jahan uski mama bhi was married at 15 or 18. Hence the problem persists. Thank you so much, Dr. Mehzad Bilal, for educating, and we're sure this will help a lot of people. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot, Khalid. Thank you. Right. So that was Mehzad Bilal, and she explained the dangers, how the body gets devastated, the soul, the mental trauma they go through. So, Amina, if we were to start, right? I mean, you have this bizarre comment by the All India Muslim Personal Law Board saying, "Agar aapne 18 se 21 umar kar di, so there will be crimes against women." What do you make of that? Why should there be crimes against women agar ladki एक साल उस उम्र के बाद शादी करती? क्योंकि टिपिकल विमेन का एग्जिस्ट करना ही उसका गुनाह है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड. क्योंकि उनका कहना ये है कि लड़कियां इंसान नहीं होती हैं, क्योंकि इंसान होंगी तो उसकी डिग्निटी होगी, आप उसको वैसा ट्रीट करेंगे. लड़कियां एक बॉडी होती हैं और जिसको देख करके लड़के टेम्पटेड हो जाते हैं, उनका अपने ऊपर काबू नहीं रहता है. सो यहाँ पे ये जो डिह्यूमनाइजेशन है वो सिर्फ लड़कियों का नहीं है, लड़कों का भी है. अकॉर्डिंग टू देम अगर लड़कियां हैं तो लड़के सोच ही नहीं सकते कुछ और चीज. XYZ वो लड़कियां हैं ही नहीं किसी और चीज के लिए. वो सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंडसेट उनका लड़कियों की तरफ होता है. तो आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत सरप्राइजिंग कोई एलिमेंट है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो नजरिया है औरतों को लेकर के वो हमेशा ही रिग्रेसिव, पैट्रियार्कल एंड आज से कोई 400-500 साल पुरानी मानसिकता रखते हैं वो. So thank you, Anna. Mahua, another comment was from the member of parliament from Samajwadi Party, Mr. Shafiqur Rahman. Now, this is a person who sits in the temple of democracy, who obviously has come in by the votes of lakhs. So we can clearly say there are lakhs of people who endorse him. उनका ये कहना है महुआ कि anybody, if the age is increased from 18 to 21, तो लड़कियां आवारगी करेंगी. What would be your response to Mr. Mohammad Shafiqur Rahman, who's a member of parliament from Samajwadi Party? काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा. See, the word आवारगी, is you have to see कि वो किस context में ऐसे word use करते हैं. बहुत ही patriarchal
mindset hota hai ye jo what you and I are going to construe from this is that a girl is getting a bandwidth to get a foothold in life, an exploration of potential, skill development, probably getting a job, getting a graduation. For him, however, this is clearly not, that it's not a positive step for him. This is again what Amna was saying, that his lens is such that for him a woman is seen from a utilitarian perspective, sexual, domestic, etc. So avargi for him is just somebody getting their agency as a human being, being able to define equal status, choro, some sort of identity for themselves. Avargi for him is that. He will have other connotations, like, in typical conservative societies, when a girl goes out to work, people say all kinds of things, right? That, so there are always a way to assassinate the character of a woman in a way to control her. So this is what he's employing. Very, very typical patriarchal, regressive thinking. What can you say about that? Right. स्वाति, इसी के साथ अगेन समाजवादी पार्टीज की कमी नहीं, पार्टी वर्कर्स और एमपीज की कमी नहीं है. So we have Mr. S.T. Hassan, again a member of parliament from Samajwadi Party, representing lakhs of people. So we can at least clearly establish that lakhs of people who backing him believe that. वो कहते हैं 18 साल तो मैं इस बिल को मानूंगा ही नहीं, मैं तो रिजेक्ट करूंगा. उनका कहना है कि 16 साल की उम्र में भी लड़की की शादी होनी चाहिए. So Swati, how would you respond to someone like Mr. S.T. Hassan? बच्ची मैच्योर है तो मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है. So ये 16 साल का जो ऑब्सेशन है, ये बहुत ही परवर्टेड माइंडसेट है, जिसमें कि आप एक मतलब 16 साल का की बच्ची ही होती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कानून में कहीं किसी ने साइन कर दिया कि भाई 16 साल की लड़की माइनर मानी जाएगी. वैसे भी 16 साल की लड़की की होती ही क्या है, उसकी बॉडी भी डेवलप नहीं होती है, उसने दुनिया नहीं देखी होती है, और आप उसके ऊपर ऐसा एक परवर्टेड किस्म का माइंडसेट रखते हैं कि नहीं ये, और वो इसलिए क्योंकि बहुत सालों से इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि कम उम्र की कम सिन लड़की बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव होती है, एक सेक्स ऑब्जेक्ट है वो भी. तो इतने सालों के बाद हमें तो मतलब मुझसे आप पूछे मिनिमम एज, ओके देखिए इसमें दो चीजें हैं. अगर आप मिनिमम एज जब तय करते हैं तो ये होता है कि आप उसको क्रिमिनलाइज कर देते हैं कि इससे कम की उम्र में क्रिमिनल मारा जाएगा. लेकिन सोसाइटी का ये एक एक रुख होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि उम्र ज्यादा हो, मतलब 22-23 साल में एक फिर भी लगता है कि चलिए ठीक है, लेकिन उससे कम और आप 16 तक जा रहे हैं, मतलब आप इतने रिग्रेसिव हो जा रहे हैं कि आप एक लड़की को बच्ची ना देखकर उसको ये समझ रहे हैं कि मतलब उसको अपनी वाइफ बना लूं, उसको अपना एक रोमांटिक पार्टनर की तरीके से. आपको ये देख के फीलिंग नहीं आती है कि एक 16 साल की लड़की है, उसके सपने भी हो सकते हैं और मैं भी उसके अंदर कोई एम्बिशन दूं? ये सब फीलिंग्स क्यों नहीं आती इन लोगों के अंदर? इनको एक 16 साल की लड़की को देखकर वो ये परवर्टेड थॉट्स ही क्यों आते हैं? राइट. स्वाति, आपने तो उस पे कहा, लेकिन एक और समाजवादी की पार्टी के एमएलए, मुझे पता नहीं समाजवादी पार्टी में कैसा पैंडेमिक है. आमना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अबू आजमी जो उनके बहुत बड़े लीडर हैं मुंबई के, उन्होंने तो हद ही कर दी. उन्होंने कहा कि हमारे संस्कार, पता नहीं किसके संस्कार की बात कर रहे थे वो, कह रहे थे कि लड़की और लड़का जब बालिग हो जाते हैं तो उनकी इमीडिएटली शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भी घर के बेटी या बहन के साथ अकेले हैं तो शैतान सवार हो सकता है. मतलब एज अ वुमन व्हाट डज दिस डू टू यू, आमना? मतलब आप, उसके बाद महुआ और स्वाति भी बोल सकते हैं कि ये क्या, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? अपनी लड़की, मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है. इस स्टेटमेंट से ज्यादा तो मैं ये बोलूंगी कि जिस इंसान की ऐसी मानसिकता है, वो समाज की, जिसकी खुद की बहन उसके साथ सेफ नहीं है, उसमें दुनिया में कोई भी लड़की उसके साथ सेफ नहीं रह सकती. राइट. तो पहली बात तो मुझे लगता है कि लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए कि वो अबू आजमी के आसपास कहीं भी सेफ नहीं है. उनका पता नहीं है कि कब उनके दिमाग में कुछ थॉट्स आ जाएंगे एंड देन वो इसको बोलेंगे कि ये शैतान ने बहका दिया. एक्चुअली ये शैतान ने नहीं बहकाया, आप खुद शैतान हो.
अगर इस तरह के आपके दिमाग में थॉट्स हैं तो ये यही सोच है जहाँ पे लड़कियां एक प्रॉपर्टी होती हैं, जहाँ पे लड़कियां सिर्फ लड़कों को इंसाइट करती हैं, वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट होती हैं, उसकी भले ही वो आपकी बहन क्यों ना हो, बट आप उसको किसी और नजरिए से नहीं देख सकते हो, राइट? तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। एंड अबू आजमी के घर में जो भी लड़कियां हैं, मैं चाहूंगी कि वो अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें जब भी उनके आसपास। आई एम सॉरी टू से, मे बी इट्स वेरी हार्श, बट ये जो उन्होंने बोला है मैं उसी के ऊपर बोल रही हूँ। साथ में मुझे लगता है कि आई डोंट नो, बट ऐसे लोग ही हैं जो लड़कियों के लिए पोटेंशियल थ्रेट हैं। और हम किसकी बात करते हैं? उन असामाजिक तत्वों की, उन विचार की जब हम बात करते हैं तो यही वो लोग हैं जिनकी हम बात करते हैं। मुझे तो लगता है कि ऐसे लड़कों को, वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, इनको किसी तरह की री एजुकेशन कैंप में डालना चाहिए, जहां इनको पहले बेसिक कंसेंट सिखाना चाहिए कि व्हाट इज द कंसेंट। फॉरगेट तुम्हारी भाई बहन, मतलब बहन माँ तो चलो अलग चीज होती है, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ रूम में हो, कहीं भी हो, एक कंसेंट नाम की चीज है। तुम उसको इंसान के जैसे देखना और समझना, उसको समझो कि वो भी एक इंसान है जैसे कि तुम हो। तुम्हें तुम्हारे साथ किसी तरह का कोर्शन पसंद नहीं आएगा, वैसे एक लड़की को नहीं आएगा। ये कौन सी बात है कि ऐसा हो जाएगा, हमें शैतान बहका देगा? ये पागलपन है, एक मानसिक विकृति है मेरे हिसाब से। महुआ, I'd आप like इसको to कैसे add देखती one हैं, इस thing. कमेंट को? ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली ये जो आपने अभी समाजवादी पार्टी के इतने सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं हमारे सामने, जी, इनमें से एक कॉमन चीज जो निकल के आती है वो ये है कि ये लोग शादी को एक सेक्सुअल ओनरशिप की तरह देखते हैं कि वे टू ओन अ वुमन सेक्सुअलिटी इज मैरिज, because in a Exactly. twisted way this is what they are establishing, you know. Right. राइट। आप कैसे देखते हैं स्वाति के कमेंट जो इन्होंने किया शैतान का? इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि एक छोटी बच्ची को देखकर आपके अंदर ऐसी ही फीलिंग क्यों आती है कि मैं उसे सेक्सुअली यूज करूं, सेक्सुअली एंजॉय करूं, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करूं? आपके अंदर ये फीलिंग क्यों नहीं आती कि मैं एक पिता का रोल निभाकर, चाहे वो अपनी बेटी हो चाहे किसी और की भी बेटी हो, उसको मैं जैसे कहते हैं मेंटोर करूं और उसे किसी अच्छी डायरेक्शन में लेके जाऊं? उसका मतलब आप उसे हमेशा इसी तरह क्यों देखते हैं कि बस वो एक सेक्स ऑब्जेक्ट है? उसे एक इंसान की तरह और एक बच्चे की तरह जिसके पास दिमाग है, जिसके पास बहुत क्षमता है बहुत कुछ करने की, उस तरह क्यों नहीं देखते? पहली बात तो एक मानसिक विकृति है। दूसरा ये कि जो थ्योरी है कि अगर आपके अंदर एक सेक्सुअल अर्ज आ जाए तो फिर वो अनकंट्रोलेबल है, वो कंट्रोल वो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, ये कहाँ से आया है? ये भी मुझे लगता है कि मतलब इस पर खूब बात होनी चाहिए और इनफैक्ट लड़कों को भी बताना चाहिए इस बारे में कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत नेचुरल ऐसी है कि इट कांट बी कंट्रोल। मतलब जिस तरीके से हम सिटी रहते हैं समाज में, हर तरीके की अर्जेस हम कंट्रोल करते हैं, तभी हम समाज में ऐसे फंक्शन करते हैं, इसको हम सिविलाइज होना कहते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसे, ये तो इट्स लाइक जंगल बिहेवियर। Mahua, Asaduddin Owaisi gave it a different twist, and I want you to respond to that specifically. He said कि ये एक बहुत patriarchal position ली है गवर्नमेंट ने। आप उसको कैसे देखते हो as a woman? Do you think कि गवर्नमेंट ने एक patriarchal position लिया? ये patriarchal position कहाँ से हुआ ये तो मुझे समझ में नहीं आया। You know, firstly, आप as a state, as for the government, लॉ सबसे कमजोर इंसान के लिए बनाया जाता है। आपके मेरे लिए शायद ये इतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो अलग सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबल पोजीशंस में लोग हैं उनके लिए अब एक 15 साल की बच्ची को 18 की बोल के आप शादी करा सकते हो, है ना? पर 15 साल की बच्ची को 21 का बोलना मुश्किल बनेगा ना, because you cannot really, so they have given the most vulnerable a certain immunity and a bandwidth to develop themselves if possible. I'm sure कि ये last step नहीं है, इसके बाद कुछ specific opportunity, skill development इस तरफ भी सरकार का ध्यान होगा, है ना? ऐसा मेरा वो है, मानना है। But ये patriarchal कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? ये तो मतलब there is no logic to this, you know. Having said that, we live in a patriarchal society. The idea of marriage, you know, itself,
does what? It replants a woman, and I'm not talking about nuclear families and progressive societies. I'm saying Indian context में बात कर रही हूँ कि आप जाके अपने ससुराल में अपने आप को एक बहुत ही एलियन डायनामिक में एस्टेब्लिश करते हैं as again subservient roles, right? So when you're 18 years old, what power do you have? What agency do you have? You don't have a job, you have no idea, कुछ नहीं है आपके पास. तो लड़का 21 साल का होगा क्यों? क्योंकि वो तब तक अपने आप को किसी तरह से एस्टैब्लिश कर लेगा, कुछ कर लेगा, राइट? सो व्हेन यू गिविंग द वुमन द सेम फाइटिंग चांस, हाउ ऑन अर्थ इज इट a patriarchal move? I think it's a very, very progressive move. Right. The implications of which we'll understand in due course, Right. स्वाति, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत यूनिक है इंडियन डायनामिक में. एक तरफ से आपने देखा जो रिग्रेसिव मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इस प्रोग्रेसिव चीज का अपोजिशन किया, लेकिन उनसे जिन्होंने हाथ मिलाया वो हिंदू कम्युनिस्ट हैं, जैसे सीपीआई है. उन सब ने कैटेगोरिकली ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कहा है कि हम इसको नकारते हैं. और जो उनके आइडियोलॉग्स हैं, जैसे जो लेफ्ट के हैं, कविता कृष्णन है या बृंदा कराट है. बृंदा कराट का तो एक वियर्ड लॉजिक था, उसने कहा कि लड़कों की भी उम्र 21 से 18 कर दो, ठीक है. तो ये कैसे दो एंटिटीज साथ में आ जाते हैं, हिंदू कम्युनिस्ट और रिग्रेसिव मुस्लिम, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है यही प्रोग्रेसिव है, यही लिबरल है, यही प्रो वुमेन है, यही फेमिनिस्ट है. लेकिन जो पोजीशन आज वो ले रहे हैं या उन्होंने प्रीवियसली भी लिए हैं, ये तो मोस्ट एंटी वुमेन और मोस्ट एंटी चाइल्ड पोजीशन ले रहे हैं. तो आप इसको कैसे देखते हैं? हाउ डू दीज टू अलायंसेस ग्रुप्स कम टुगेदर एंड अपोज समथिंग व्हिच इज सो राइट फॉर अ गर्ल चाइल्ड? बिल्कुल खालिद, और यही सबसे बड़ी विडंबना है लेफ्ट और इस्लामिस्ट ग्रुप्स के अलायंस की. देखिए, पहली बात तो ओवैसी की अभी आपने बात की थी. देखिए, ओवैसी की पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी वो रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को. तो मुस्लिम कम्युनिटी में जहां आदमी 4 शादियां कर सकता है, महिला नहीं कर सकती है. जहां आदमी तलाक वन साइडेड दे सकता है, महिला नहीं दे सकती है. बल्कि मैंने ऐसे केसेस कवर किए हैं जिसमें महिला चाहती है तलाक, लेकिन इतने टाइम तक उसको मतलब धक्के खाने पड़ते हैं पुलिस स्टेशन के. तो वहां पे इनको पेट्रियार्कल नहीं दिखता कि पेट्रियार्की है वहां पे. तो बल्कि ये बिल्कुल रिफॉर्म की भी बात नहीं करते, उन केसेस की भी कभी बात नहीं करते. हाँ, लड़की की शादी 18 में ना करके आप 21 में मिनिमम करो, यहाँ इनको पेट्रियार्की दिखती है. तो पहली बात तो ये बिल्कुल ये लॉजिक समझ से बाहर है. दूसरा, लेफ्ट पार्टीज का देखिए क्या इनका प्रॉब्लम ये है कि ये अगर जैसे हिंदुत्व पार्टी जिनको ये कहते हैं, क्योंकि ये उनसे इतनी, मैं कहूंगी हेट ही कहूंगी, क्योंकि चाहे वो कुछ भी करे वो उनको हमेशा उनको रिग्रेसिव ही बताना है. देखिए, हिंदुत्व मूवमेंट अपने आप में एक्चुअली एक एंटी कास्ट मूवमेंट, मतलब उसका बहुत बड़ा पार्ट उसका एंटी कास्ट मूवमेंट है. इसको मैंने आज एक एस्से भी लिखा है. लेकिन वो उन सब को रिजेक्ट करके ये कहते हैं कि ये ब्राह्मणिकल पार्टी है. यहाँ पर भी एक बड़ी विडंबना आ जाती है कि ये एक दूसरे की एक्यूजेशन लगाते हैं. और अगर वो एक प्रोग्रेसिव कदम उठा रहे हैं जिसको ये हिंदुत्व पार्टी कहते हैं, तो उसमें फिर ये सबसे रिग्रेसिव सेक्शन यानी जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप्स हैं उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे सिंगुलरली हेट द सो कॉल्ड हिंदुत्व पार्टी सो मच. कविता कृष्णन का उस दिन, जो कि सीपीआईएम की काफी एक प्रोमिनेंट वॉइस है सोशल मीडिया पर, लीडर भी है, उन्होंने लिखा था कि अगर 18 साल में लड़कियां वोट कर सकती हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकती. दूसरा, उन्होंने ये कहा कि विमेन की ऑटोनॉमी खत्म होगी, कि मतलब देयर राइट टू डिसाइड. ये चीजें उनके जनरल फिलॉसफी से जो हमको बताया जाता है वो इतनी भिन्न है. अभी बताइए कि 18 में वोट कर सकती है, शादी नहीं कर सकती. मतलब वोट और शादी करना एक सा होता है क्या? वोट आप करते हो, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस नहीं करने पड़ते, आप घर पे आ जाते हो. और अगर आप वो पार्टी चुन लो जो पार्टी उसमें नहीं आती है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि शादी अगर आपने कर ली तो आपको ऑब्वियसली उसको आपको it becomes a part of your lifestyle changes, your whole life changes. वोट करने से किसका लाइफ चेंज होता है? और वोट आप फिर से 5 साल बाद करने चले जाओ तो शादी का कोई तुक ही नहीं है. Still tell you the left's problem is that their almost unjustified singular hate for Hindutva parties is such that they will actually ally with the regressive groups to condemn anything progressive they make.
Right. Kavita But Krishnan also said one more thing. right. Kavita Krishnan was hinting that all this is happening to basically curb interfaith marriages. What are the stats of interfaith marriages in this country? Really, कि Yes. सारे है ना? Yes. कौन से interfaith marriages Exactly. को है ना? कितने % होते, मैं जानना चाहती हूँ interfaith marriages, और बोल रहे हैं कि 18 साल में कर दी थी, अब 21 के होते परिवार रोक लेगा. ये कोई argument हुआ क्या? You know, this again shows how hand in glove they are with this whole Islamist take on the same subject. It's terrible. बिल्कुल, मतलब इतना छोटा वो जो आपका जो है इंटरफेथ मैरिजेस का मतलब हाँ, मतलब क्या पॉलिसी है वो? मेकिंग में वो बहुत छोटा नंबर है, और उसको लेकर कितना आप %? 1% भी होगा कि हाँ. नहीं? मुझे डाउट है इस बात पे. राइट राइट. मैं अगर अपनी रियलिटी से बात करूं तो दूसरी थिंग which I get very surprised, not surprised also, not shocked also, which I see, the privileged Muslim who's so quiet, the one above the middle class whose daughters don't even marry before age of 25. They study in the best of Christian missionary schools, they study in the best colleges, they live the most privileged life. And these same leaders, all these top leaders of Samajwadi Party and others, their own children, make a life, they study, they, pursue their careers, they work, then, or, whatever, they take their decisions. But they keep quiet when the regressive elements justify the same thing for the poor person, right? And I think they also want to use those people only as pawns, right? आप एक exotic pet की तरह जैसे हिंदू कम्युनिस्ट यूज करता है उनको, ये नहीं कोशिश करते कि उनका लेवल आप अपने तक ले आए, उनकी बेटियां भी वो पाए जो हमारी बेटियां पाते हैं. That is also ये तो another चाहा ही aspect नहीं of उन्होंने it, कभी. कभी नहीं चाहा उन्होंने कि ऐसा हो. right? So actually तो एजेंसी किसके पास नहीं है? जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज में गरीब लड़कियां हैं, गरीब मुस्लिम, हिंदू, बिल्कुल, क्रिश्चियन, सिख, बिल्कुल. जो भी हो, उनको एक एजेंसी मिलेगी कि वो रेजिस्ट कर पाएंगी 21 साल की उम्र तक, ताकि वो भी अपनी जिंदगियां बनाएं. बट ये क्या चाहते हैं कि वो एक मशीन प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री बने, कल को वोट्स भी उन्हीं से मिले और वो रहे जैसे वो रहे, और खुद आप ये लिबरल शैंपेन सिपिंग मुशायरे करो और कहो कि देखियो मैं कितनी ग्रेट हूं, मैं कितना ग्रेट हूं, और मुझे बहुत दर्द होता है पॉवर्टी के लिए, क्योंकि आई लव पॉवर्टी. मुझे थोड़ी चाहिए कि उसका भी लेवल मेरे पास आए, बिकॉज अगर वो मेरे पास आए तो फिर क्लास में डिफरेंस है. तो ये तो क्लास दे आर सो casteist in a class manner, right? So this is another thing where the privileged Muslims are to be blamed, because they should be calling out the likes of Waisi. And by the way, even those very leaders ensure that their children get the best of everything, right? You never hear their children getting married at the age of 16, 18, or all that. Exactly. So that's another thing. So देखिए खालिद, if I can say something to that, आपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात करी, मैं हिंदू कम्युनिटी की बात करूंगी क्योंकि मैं उसमें पली बड़ी हूँ, मैंने वो माहौल देखा है. देखिए जो शहरी जिन्हें हम लिबरल्स कह देते हैं, उनकी भी सोच इससे कोई अलग नहीं है. आप जरा मतलब देखिए, मुझे गांव का काफी आइडिया है क्योंकि मेरी काफी रिश्तेदारी गांव में है, और मतलब मैंने देखा है वहां पर कैसे होता है. हालांकि मैं तो एक फिर भी शहर में पली बड़ी हूँ. वहां पर 18 साल में लड़कियों की शादी बहुत आम है, इतनी की, और 18 साल की लड़की एक मतलब बस अपना स्कूल खत्म किए हुए होती है और कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, और जिसकी आप सुने वो बीए फर्स्ट ईयर में थी उसकी शादी हो गई, बीए सेकंड ईयर में थी उसकी शादी हो गई, या फिर अभी बस कॉलेज में अप्लाई ही कर रही थी उसकी शादी हो गई. ये बहुत आम है. ये एक्चुअली सबसे ज्यादा क्यूरियस फिनोमिनन यही है कि जो अपने लिए वो लाइफ नहीं चूज करता, वो दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करता है अपने नैरो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गेम्स खेलने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई मैं इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं उनकी बात करूंगा, और कहने के लिए वो मासेस की बात करने लगते हैं. देखिए मासेस का ऐसा है कि जब तक उन्होंने वो टेस्ट नहीं किया है ना थोड़ा फ्रीडम और प्रोग्रेसिव जैसे होता है, तो फिर वो ऐसे ही रिग्रेसिव. देखिए अगर आप आज इस बिल को लेकर आज गांव में भी जाके पूछेंगे तो लोग एकदम से हाँ नहीं करेंगे. लोग काफी सारे, हो सकता है पेरेंट्स ये कहें कि ये हम पर थोपा जा रहा है या फिर हम तो लड़की की शादी जल्दी करना चाहते हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि सरकार एक कदम ना ले. इंडिया में पहले 16 साल ही थी ना मिनिमम एज, उसके बाद 18 की, तब भी ऑपोजिशन हुआ होगा, लेकिन अब देखिए सब इस चीज में सेटल्ड हो गए हैं. तो क्या हम ये कहें कि भाई जो मासेस कहें वो हम करें? तो पहली बात तो ये कि हमको
मतलब ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग, इलिटरेसी बहुत है इंडिया में, और we can't say कि they always know what's best for them because they have not lived the you know, उन्होंने वो जो फ्रीडम होती है, वो जो लिबरलिज्म जिसे कहते हैं, ट्रू लिबरलिज्म, वो देखा ही नहीं है। तो ये तो मतलब आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दैट आई ऑलवेज ट्राई टू एडवोकेट व्हाट आई लिव और व्हाट आई हैव काइंड ऑफ फाउंड टू बी गुड। I don't promote regressive ideas just because you know, जो काफी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मैं उन्हीं की बात सिर्फ इसीलिए बोलूं क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करेंगे, जबकि मुझे पता है कि वो ठीक नहीं है। स्वाति, इसमें बहुत एक यूनिक चीज निकली कि privileged Hindus and privileged Muslims don't necessarily have the right intentions for their poorer cousins. Right. They don't, and they also don't usually have an idea. देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं खालिद कि उन्होंने एक्चुअली कहीं वो कभी विजिट नहीं किए होंगे, वो उन्होंने कभी उन लोगों से बात नहीं किया होगा, लेकिन वो उनके बारे में अज्यूम करते हैं तरह तरह की चीजें। A lot of people only have an idea of what you're supposed to wish for others as well, right? Yes, you should. लेकिन ये भी है कि लोगों के पास अक्सर एक कैरिकेचरिश आइडिया होता है कि हाउ पीपल लिव इन विलेजेस, इसीलिए वो जब जाते हैं तो टूरिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। लाइक शहर का, दिल्ली का इंसान भी जब गांव में जाता है तो टूरिस्ट की तरह बिहेव करता है। But I'm saying of something more sinister, that you know, you want your children to study in the best schools, you want them to marry post for 25, 18, 21 की तो बात ही नहीं है. You want them to be independent, even if they come from the most affluent families. But then within your community and then within your citizens from other faiths, you're like, no, let them be like the sheep they are. Khalid, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद करने की बात हो रही थी ना, तो मैं काफी सारे गांव में गई थी। आपको पता है बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग कह रहे थे कि हमको ये नहीं चाहिए इलीगल स्लॉटर हाउस। ऐसा नहीं है कि उसमें सारा कि बहुत लोग एम्प्लॉयड होते हैं तो उससे बहुत ज्यादा उनको एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है, नहीं। इतने सारे गाँव में मुझे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ये बताया कि ऐसे ही जहां मर्जी मीट काटने लगते हैं, टुकड़े फेंक देते हैं, बदबू आती है, गंदगी फैलती है, उनकी बातें मीडिया दिखाता ही नहीं था। तो और इसी तरीके से हर डिबेट में जैसे भी लोग, जैसे सपोज ये कहते हैं कि हाँ बाहर के जैसे रोहिंग्या या जो भी इलीगल इन्फ्लेटर्स हैं, हाँ इनको रहने दो, ये अपनी गली के बाहर वहां इनको नहीं बस्ती बनाने देंगे। इसी तरीके से कहते हैं हाँ प्रोटेस्ट अगर साइट है तो करने दो, ये लोग गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि नहीं बहुत जगह पर लोग आके प्रोटेस्ट साइट बना दे, क्योंकि इनको लगता है कि मतलब उसको ये रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, और अपने घर में ये अपने घर के बाहर ये एक लड़के को मतलब दे वोंट टॉलरेट अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड देयर ओन हाउस। वहां पे तो सिक्योरिटी कैमरास लगाते हैं, सब लगाते हैं, बट वहां कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं? काउ स्मगलर वाले उसमें देखिए, अपने दिल्ली में मतलब इनके घर में जब ये ओके करते हैं तब इंसान घर के अंदर आता है, या फिर सोसाइटी के बाहर गार्ड रोक देता है, एप्स के थ्रू ये लोग एंट्री करते हैं। लेकिन ये गांव में ये चाहते हैं कि इंसान घर में सोए और रात को चोर आए, उनकी गाय भैंस भी ले जाए, उनको मार भी दे, और उसके बाद वो उसको प्रोटेक्ट भी ना करे, फिर कहते हैं विजिलेंटे हैं। ये हाल है, इतना डिफरेंस है एलीट और उन लोगों के बारे में जिनकी वॉइस बनने की कोशिश करते हैं इंडिया में। Basically, they need slaves. They don't need equals. They need slaves or pawns जो इनके लिए इनकी megalomaniac और मसीहा कॉम्प्लेक्स को बढ़ाए। इसी पॉइंट पे एक्चुअली अलग से डिस्कशन होना चाहिए। इसी पॉइंट पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो चाहते हैं ना एक मासेस को कंट्रोल करना, वो जो शेप है वो पॉलिटिकल पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मैं बार बार पाशमानदा अशराफ का एंगल यहाँ पे करती हूँ बात, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो राना अयूब है या अरफा खानम है, आप उनकी लाइफ स्टाइल देखो, आप उनकी खुद की पर्सनल चॉइसेस देखो, उन औरतों के पास हर तरह की एजेंसी है, बट वो पाशमानदा औरतें या गरीब मुस्लिम औरतें हैं, उनकी एजेंसी के बारे में कोई बात नहीं करेंगी, राइट। तो यहाँ पर भी आप वो देख सकते हो कि इनको पॉलिटिकल पावर जो खुद की सिक्योर करनी है उसका सबसे ईजी वे है कि फुट सोल्जर हो, और अगर कुछ पे भी करना है तो वो उनके फुट सोल्जर को पे करना होगा। सो अगर वो इवॉल्व हो जाएंगे तो वो क्यों रेडी होंगे उनका फुट सोल्जर बनने के लिए? ये गेम बहुत ज्यादा डिस्कस होना चाहिए। Absolutely. इसी पे महुआ, I would want to since you come from the entertainment industry, suddenly all those I mean obviously you're not responsible for that, but you can give us a better idea
where are all those rent and activists, who basically at the drop of a hat are ready to shame India on global platforms? Where are they right now? पैसा नहीं मिला इस बार उनको कि आपको प्रोटेस्ट करना है कि गरीब लड़कियों के लिए बेटर चीज हो रही है. तो how do you see that both as an artist, as a woman, कि कहाँ है वो लोग इस पर? See, मुझे जहां तक लगता है अंदर से ना इनकी सहमति होगी इस बिल पे, cannot if you're sitting alone and you're looking at it, इसीलिए देखो बहुत ज्यादा हंगामा नहीं मचा है. ये कुछ पॉलिटिकल कैंप्स का है, पर जो जनरली जैसे होता है ना, हाय तौबा देश लुट गया, देखो कि सरकार ने क्या कर दिया, ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक आंख की शर्म भी तो होती है ना. यू कैन नॉट कम एंड से दैट दिस इज रॉन्ग, लाइक दैट. बट नाउ पोजीशन भी तो ले रखा है एक ये बाइनरी में, व्हेन यू आर anti BJP, you're left off the scene, and you're constantly establishing that this government is regressive, etc., etc., etc. Now, how do you come forward and say, oh, wow, like this is a great positive step? You counter your own position, right? So you will not have anybody come forward and really, I think, so I've noticed great silence, from people who are abstaining from commenting at all. They're like, okay, nahi hua, ghatna nahi hui, chalo. There's nothing to say. Because ye problem hai. Also see counterculture. Historically counterculture क्या होता है? एक एंटी स्टेट पोजीशन होता है, where the intellectual, the artist, etc., the prototype is morally superior to those in power. So ऐसे आइडियाज उनके दिमाग की उपज होनी चाहिए. बोलने के लिए लिप सर्विस है, कोई पॉलिसी नहीं बन रही, उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, लॉ नहीं है, पर so when the state goes ahead and does something which is, one step up, right. Then you just ignore it. This is typical, how can you come forward and say, and I don't think it's just BJP and culture, but I think it's typically like culture versus state mein yahi hota hai. Your culture must win, And they can't speak truth to power to people like Shafiqur Rahman and S.T. Hasan. Utna unme They power will not. nahi. They will not, because see, again, this is where Kavita Krishnan is creating another space where she's saying that, ye ho raha hai, that interfaith marriages रोकने के लिए ये साजिश है. I mean, what kind of इनको आइडिया ही नहीं है, logic is इनको this? रियलिटी का आइडिया ही नहीं है. What logic is this? So again, they try to kind of, deviate and create something to cling on to. There's nothing. See, this will also just fall flat. But Right. people from culture are not being able to, really openly come against, because they can't. The truth of the matter will be that they would be in support of it. राइट. एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि अब आवाज आ रही है मेरी? Yeah. हाँ, तो यहाँ पे मैं एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की रिग्रेसिव एलिमेंट है वो बहुत अच्छे से एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि वो जब अपना मुंह खोलते हैं ना तो वो गार्बेज निकलता है. यू कैन जस्ट सी कि हाँ वो सामने है, पड़ा हुआ है. प्रॉब्लम यहाँ पे यही होती है ना कि ये जो लिबरल इकोसिस्टम हो, लेफ्ट हो, या जो भी ये लोग हैं, ये हमेशा एक ऐसा टर्मिनोलॉजी लेकर आते हैं जो कि मतलब लॉजिकली बहुत अच्छे से फिट बैठ जाता है इनके रिग्रेसिव आइडियाज को छुपाने में. उसको कुछ वो चॉइस का नाम दे देंगे या कुछ भी ऐसा, वो जैसे कि लेट मी गिव दिस एग्जांपल कि अगर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, राइट, कोई क्यों पाकिस्तान को इंडिया में रहते हुए चीयर कर रहा है? बिकॉज देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट जहाँ पे कि उनके सेपरेटिज्म की भावना है उनके अंदर, राइट. बट ये लोग क्या करेंगे कि अपनी टर्मिनोलॉजी लेकर आएंगे कि अरे गेम की भावना है, जो अच्छा गेम खेल रहा है क्या हम उसको सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते हैं? ओ माय गॉड, आप लोग कितने ज्यादा वो बन चुके हो, जिग्नोजिम है, ये है, मतलब इस तरह के सारे आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं. ट्रिपल तलाक हुआ तो कोई भी जानता है कि ये मुस्लिम महिलाओं के लिए अच्छा है, बट उसमें भी किसी तरह का वो आर्ग्यूमेंट लेकर आ जाते हैं. तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस इकोसिस्टम से, क्योंकि मुस्लिम रिग्रेसिव एलिमेंट तो आपके बिल्कुल सामने होते हैं, आप उनसे फाइट कर सकते हैं. फर्स्ट तो ये उनसे फाइट नहीं करते, सेकंड ये अपने हर मीन को यूज करते हैं उनको अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए, क्योंकि उस मुस्लिम को भी जो अंदर से तो पूरा पैट्रियार्कल है, ठीक है, लेकिन वो अपने आर्ग्यूमेंट कैसे सामने रखना है वो इनको देख के सीख लेता है. कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं पैट्रियार्कल इसमें बिलीव करता हूँ, मैं ये बोलूंगा कि ये तो चॉइस की बात है,
ये एजेंसी की बात है। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो इंडिया में 70 सालों से चली आ रही है, और अब जाके हमको इस पे बात करनी पड़ेगी, इसको उजागर करना पड़ेगा। ये इंटेलेक्चुअल करप्शन है, ये जो आप एक हमेशा मॉरली वर्चुअस है और हमेशा आप ऐसे आइडियल्स उठाते हैं जो यूनिवर्सली बहुत अच्छे साउंड करते हैं, लेकिन आप उसको अपने कन्वीनियंस से आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो राइट। और अगर आपके कॉन्टेक्स्ट के बाहर जब ये चीज हो रही होगी तब आप बिल्कुल मुकर जाते हैं, तब वो अप्लाई नहीं होता। Exactly. नहीं, जैसे महुआ आर्गुमेंट इतनी लाफेबल है कि 18 साल की लड़की को चॉइस से आप नकार रहे हैं। उस बेचारी टायर 1 टायर 2 सिटी की जो मिडिल क्लास से नीचे लड़की है, उसके पास कौन सी चॉइस ही है जो वो खुद करती है कि वो खुद से थोड़ी 18 साल की उम्र में शादी करना चाहती है या बच्चे रखना चाहती है। तो वो है। खाली ये बताइए कि आप ये मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई लड़की कहे कि बस मैं, ये तो फिल्मों में ही होता है कि अब तक साजन मिला नहीं है कि मैं हुई मैं 18 साल की, या बाबुल मुझे भेज दो मैं इसलिए हो गई उम्र तो ये सब तो फिल्मों में होता है। रियलिटी में क्योंकि शादी सिर्फ ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक और बाहर घूमेंगे और मजे करेंगे। शादी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा होता है कि आप एक नए घर में जाते हो, घर संभालते हो, सास भी होती है मतलब देयर इज, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत मतलब जो बिल्कुल टिपिकल अर्बन वेडिंग और उन दो लोगों की जो जॉब में है, काम करते हैं, अर्निंग है, उनकी बहुत अलग हो सकती है। वो अक्सर अलग भी रहते हैं, दे मे बी लुकिंग फॉरवर्ड टू लिविंग टुगेदर। लेकिन एक टिपिकल आप गांव में मिडिल क्लास फैमिली की देखिए, वहां ऐसा कुछ नहीं है कि एक लड़की ये सोचे कि मेरा ड्रीम है बस जल्दी से मेरी शादी हो जाए। और अभी भी अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, लड़कियों से वहां, कि क्या आप 18 साल की उम्र में शादी करना चाहते हैं, क्या सरकार आपकी चॉइस को कर्व कर रही है, वो नहीं कहेगी। मैंने खुद इतनी लड़कियों से बात करी है। मैंने एक मध्य प्रदेश के बहुत छोटे से शहर, एक लड़की है, वो मेरे साथ काम भी करती है, तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम दुखी हो इस रूल से? कहती है हाँ मैम मैं दुखी हूँ, क्योंकि सरकार को तो 25 साल कर देनी चाहिए मिनिमम एज, क्योंकि उसे ये था कि उसके ऊपर भी तलवार लटक रही है 21 साल की होगी तो उसके पेरेंट लड़का देखना शुरू कर देंगे। आई थिंक इस पे वीरदास एक अच्छा सा रिस्पांस दे सकते हैं। कविता कृष्णन का आई कम फ्रॉम इन इंडिया जहां 16 और 18 साल की लड़कियां शादी करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है ना, और वो अपनी Yes, चॉइस से करना yes, चाहते हैं, है ना। yes. राइट। right. तो लास्टली लेडीज, आई मीन आई लीव इट टू यू गाइज। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है देश के लिए, बहुत ही अच्छा है देश की गरीब लड़कियों के लिए, अंडर प्रिविलेज लड़कियों के लिए, जिस भी मजहब से वो हो। तो आप तीनों इस बिल को कैसे देखते हैं? महुआ आप स्टार्ट कीजिए, स्वाति और फिर आमना। महुआ, हाउ डू यू व्यू दिस बिल? लाइक आई सेड बिफोर, ये बिल एक लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें उस तरीके से दिखेंगे कि वर्क फोर्स में कैसे नए एक फीमेल नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं। अब 3 साल बढ़ जाएंगे किसी के हाथ में तो वो कॉलेज भी चला जाएगा। यू विल सी मोर एजुकेशन, यू विल सी पीपल गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। एक सोशल चेंज जो होगा ना, वो एक जनरेशन के ग्राफ में हमें दिखेगा कि कैसे सामाजिक परिवर्तन आया, कैसे लोगों के अभी जो है, again speaking of typical traditional and especially of the poor, कि आप शादी एक completely rigged in favor of the male, right? आप एक दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में जाते और आपकी जिंदगी बिल्कुल ही डिसाइडेड होती है कि आप इस तरीके से घर में ऐसे रोल्स प्ले करेंगे। बहुत यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है ये। there's nothing charming, it's like a job, unpaid job, or so in this context, see, another thing that will happen is that a lot of people are getting married से 15 साल में शादी हो गई है ना। 15 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा बोल के छोड़ सकते हैं आप। अब क्या होगा, बहुत सारे जो ऐसे एज ब्रैकेट्स में जबरदस्ती की शादी कर देनी, ये सब थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि आप जो है 21 साल की शक्ल अलग होती है और वो है ना, एक ग्रोथ आप नहीं इतना फेक कर सकते हैं। सो it will not be so easy for people to take these liberties anymore, and as a result, I think you may not see it today, tomorrow, but you will see over time how our society evolved as a result of this, in favor of women. And I think we'll live to see that. स्वाति, आपका क्या व्यू है इस पे? जी,
खालिद, मैं इस बिल के बारे में मेरा ये कहना है कि मैं इस पे ऑपोजिशन जो है उसको फॉलो कर रही हूँ कि जो ऑपोजिशन वॉइसेस हैं वो क्या आर्गुमेंट्स दे रही हैं। अब तक मुझे एक भी आर्गुमेंट कन्विंसिंग नहीं लगा। मतलब मुझे ये तो नहीं पता कि बिल साइंटिफिकली सोशली किस स्टडी पर बेस किया गया है या फिर एग्जैक्टली क्या होगा, आई डोंट नो, nor am I privy to all those studies on which the government might have based it. But जितने भी काउंटर आर्गुमेंट्स आ रहे हैं वो तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। चाहे वो ये हो कि भाई हमारे पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ कर रहे हो, बेकार आर्गुमेंट है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वोट कर सकती है, शादी क्यों नहीं कर सकती, बेकार आर्गुमेंट है। अगर आप ये कहते हैं कि अब लड़कियों की ऑटोनॉमी खत्म कर रहे हैं, ये बेकार आर्गुमेंट है, क्योंकि लड़कियों ने तो अब तक कोई प्रोटेस्ट मैंने ऐसा देखा नहीं है, ना किसी मीडिया ने उनको ऐसे कौन। तो जितने भी आर्गुमेंट है वो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। दूसरा ये कि मैं सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ। इफ आई रिकॉल माई सेल्फ एज एन 18-year-old गर्ल, मतलब मुझे तो नहीं याद है कि मैं या फिर मेरे कोई भी पूरे सर्कल में कोई ये चाहता हो कि बस हमारी तुरंत शादी कर ली जाए। बल्कि हम लोगों के सपने थे, हम लोग कुछ करना चाहते थे, कुछ भी। नॉट एवरीबडी वांटेड टू वर्क एंड इट्स नॉट मैंडेटरी दैट एवरी वुमन वर्क्स, बट एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग विद देयर लाइव्स। मतलब अर्निंग और डूइंग जॉब इज नॉट the choice of all, but everybody wants to do something, learn something, enjoy life, तो इस तरीके से मैं देखती हूँ। तो जब मैं नहीं मतलब पर्सनली मैं प्रसन्न हूँ, पर्सनली मैं सपोर्ट करती हूँ। और मैं आई वोंट प्रिटेंड टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल वुमेन एंड से कि नहीं जी ये तो बिल अच्छा नहीं है। जब मुझे पसंद है तो मैं तो यही कहूंगी कि हाँ बढ़िया है। Now you can wrap it up for us after that. You can give your view. मैं तो बहुत खुश हूँ ओपनली। एंड मतलब मुझे अगर मीनार पे चढ़ के चिल्लाना भी पड़े तो मैं बोलूँगी मैं बहुत हैप्पी हूँ, ठीक है। बिकॉज जिस कम्युनिटी से मैं आती हूँ एंड स्पेशली उसमें भी जो पाशमानदा कम्युनिटी है, मैं गांव में 10 साल रही हूँ, मैंने गांव की मानसिकता देखी है। वहाँ जहाँ लड़कियों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है, जहाँ लड़कियों को ट्रीट किया जाता है कि वो एक बर्डन है, जितनी जल्दी से जल्दी इनको शादी करके मतलब निपटा दिया जाए उतना अच्छा है। वहाँ लड़की को 2-3 साल मिल रहा है। प्लस लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसी लेकर आए हुए हैं जहाँ वो पढ़ाई कर सकती है एंड ड्यूरिंग उसकी स्टडी गवर्नमेंट खुद पैसे जमा करती है कि इसकी शादी के लिए भी पैसे जमा हो जाए। तो आई डोंट थिंक कि पॉलिसी की भी कमी है कोई। तीसरा जो चीज़ मुझे बहुत जिस चीज़ ने खुशी दी वो ये था कि फर्स्ट टाइम जब जेंडर को लेकर के कोई लॉ बन रहा है तो यहाँ पे आपका पर्सनल लॉ को उन्होंने मतलब किनारे रख दिया। यू कैन अपना साइड हटाओ, तुम्हारा पर्सनल लॉ मैटर नहीं करता है, जेंडर मैटर करता है। क्योंकि मैंने ट्वीट भी किया था कि मैं उसको सेलिब्रेट नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे था मेरे दिमाग में कि ये हिंदू बिल कोड के अंदर डाल देंगे, बाकी लोग तो जो मजे करो, ठीक है। बट जब मैंने कंचन गुप्ता का ट्वीट का सीरीज देखा तो मैं बहुत खुश हुई कि नहीं, अभी मतलब मैं जो हमेशा से एक शिकायत करती हूँ कि 70 साल हो गए एंड मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ और मुझे लगता है कि मुस्लिम औरतों को आज़ादी नहीं मिली है, नाइंसाफी हुई है हमेशा से हमारे कौम के मतलब हमारी लड़कियों के साथ। तो वो मुझे यहाँ पर होप दिखता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सब मतलब चेंजेस आ जाए तो मैं यूसीसी के लिए शायद रोऊं भी ना उतना, क्योंकि मेरा यूसीसी के लिए रोने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे दिखता है कि कोई और वे है ही नहीं मुस्लिम लड़कियों के लिए इक्वल लॉ लाने के लिए, राइट। तो आप ये देखिए मुस्लिम सोसाइटी की हिपोक्रेसी, जहाँ पे लड़कों को 4 शादी अलाउ है उस पर कोई नहीं रोता है, लेकिन लड़कियों की अगर शादी की उम्र इक्वल टू लड़के को कर दी गई तो उस पर सबको रोना आ रहा है। क्यों नहीं लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए? जब लड़का अपने करियर और अपने ड्रीम के लिए 21 साल तक वेट कर सकता है तो लड़कियां भी कर सकती हैं। एंड लड़कियों की जिंदगी सिर्फ एक हाउसवाइफ बनने के लिए नहीं है, तो उसको ये चीज डिसाइड करने के लिए भी थोड़ा टाइम दीजिए। 21 साल में वो समझ जाएगी कि वो अपने लिए क्या चाहती है। अगर वो एक घर संभाल के हाउसवाइफ भी बनना चाहती है तो वो बेहतर हाउसवाइफ बनेगी, क्योंकि अभी वो ज्यादा परिपक्व है। प्लस बायोलॉजिकली साइंटिफिकली अभी तक मैंने जितने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, मेरे हिसाब से लड़कियों के लिए बेटर है कि वो 21 साल में शादी करें। वो एक ज्यादा स्वस्थ और हेल्दी बच्चे को भी जन्म दे सकती है। सो ओवरऑल तो मैं 100% इसके सपोर्ट में हूँ। मेरे लिए कोई इफ एंड बट है ही नहीं इसके लिए। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ओपोज करने के कोई ग्राउंड्स कैसे हो सकते हैं वो समझना मुश्किल है। वो आपको कविता कृष्णन को मिलना पड़ेगा। All right. Okay. Thank you, ladies. It was a pleasure hosting 3 Thanks, very Khalid. bright Thanks, women Amna. and Thank you so celebrating much, this Khalid. historic It day. was really nice speaking, and also you were a great host. Thank you. Very sweet host.